Dhruvan Shah. So today we have a special guest, one of my old friends, Gaurav Zagade, and also a candidate master who has his personal best international rating of 2207. It's amazing. He has won a silver medal in Commonwealth under 18. Also recently he came second in the All India University Championship. He's played at foreign lands like Slovakia, Czech Republic, and many more, of course. And he has represented India at international events like World Youth, Asian Chess Championship, and many more. Gaurav, this is a lot. But how do you feel after doing so much? Yeah, it's very nice. I mean, you have called me for this podcast. I mean, this itself is a big achievement for me. No, it is because you have done it at a very good level. And I have seen you from when I was in third standard. I still remember you were the champion of the interclass. Yeah. So I thought, okay, there is this guy who plays chess, but I didn't know that you played so well, and I was literally scared. Ki, I don't want to play against you, and that is when I think you were at your start of the career, and then today you are a candidate master with such good rating and one of India's best. Tell us about your journey. Yeah, it took like almost 15 years for me to reach here at this stage. And I started like playing chess when I was 6. 6, okay. Yes, in first standard. Oh. So like everyone, first love was cricket. Like I used to play cricket. और मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया इसमें. सो हम टेरेस पे नेट वगैरह लगा कर खेल रहे थे. बट यही लाइक रेनी सीजन आया और फिर हम घर पे बैठने लगे. तो तब मेरे अंकल ने सजेस्ट किया कि इसको चेस सिखा. अच्छा. एंड देन इट स्टार्टेड लाइक देन माय फादर बॉट द बुक्स. लाइक फर्स्ट बुक आई डोंट रिमेंबर बट इट वाज इन मराठी. ओके. बुद्धिबळाचा श्री गणेश वगैरह. अच्छा. एंड देन ही लर्नड हिमसेल्फ लाइक ही ऑल्सो डिडंट नो हाउ टू प्ले एंड देन ही टॉट मी. So slowly like I started learning, my interest developed, and yeah, this is how it started. So you've been learning at home itself? Yes, my father taught me. So he's my Wow. first and last coach, I can say. Of course. No, but because people usually go to some coaching center who is already, and here you are saying that the father learnt it and then Yes. that is so he must have supported you a lot for chess. True. But still, I've seen that many people, they want to pursue their dreams, but they don't get that parental support. So Correct. how important do you feel is that support? No, I mean it is very very important because like game like chess, chess is literally brutal game. I mean consistency is very important in that. Correct. So and even you are studying it well, it's very difficult to win the games. I mean the game is so hard. Okay. And many times we have to suffer losses and our performance is not that great. It's constantly happening. I have seen players. So many players then like when they reach 10th, 9th, 10th, they choose academics over chess. Correct. But my parents, like I have to give credit to them because they have supported me a lot. Correct. So even while making a decision like to pursue science after 10th or to play chess professionally. So yes, because of them I could like decide freely. Na? Yeah, because I remember जब मैं 10th में था, मैं 9th में था तब गौरव झगड़े 99%. You were 99% ना? Yes. So I was like कि यार ये शायद पढ़ाई नहीं करेगा आगे क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इतना अच्छा अचीवमेंट है. तो तूने लिटरली दोनों मैनेज किया इतना अच्छे से. You got 99%. Everyone is shocked when I chose chess. Like when I decided to take arts for chess, so that I can give my time to chess. Okay. So arts gave you that time कि तू. yes. Okay. तो साइंस में तो नहीं मिलेगा टाइम, नहीं, बहुत नहीं. पढ़ाई करनी Correct, पड़ेगी. correct. और ये 9th में डिसाइड हो चुका था कि आई विल टेक आर्ट्स. Okay. बट एकेडमिक्स और ये बैलेंस करना भी तुझे ज्यादा डिफिकल्ट गया या फिर तू दोनों भी कर पाता था अच्छे से? दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ चेस. लाइक तुझे एकेडमिक्स it में helps you. यस बहुत ज्यादा. हाँ नहीं ये तो है कि बट इट इज अ वेरी पेशेंट स्पोर्ट. मतलब बहुत सारे लोग एक लेवल तक खेल सकते हैं बट आफ्टर दैट इफ यू डोंट हैव दैट पेशेंस Correct. तो वो नहीं खेल सकते. बट
मैंने देखा है ऐसा कि बहुत बार अभी जैसे इफ वी आर प्लेइंग अ मैच सो यू आर अ वेरी हाई रेटेड प्लेयर, Correct. सो देयर इज अ फियर ऑलरेडी इन मी कि Yes. मैं तुझसे कैसे जीतूंगा. Right. तो अब ये चीज जो मैंने देखा है बहुत सारे यंगस्टर्स में, मेरे में भी ऐसा होता था. Right. तो वो कैसे ओवरकम करना चाहिए, कोई आइडिया है इसमें? तो ये धीरे धीरे से होता है जब लाइक वी कंटिन्यूसली कीप प्लेइंग हायर रेटेड ओपोनेंट्स, तो वो correct. डर मर जाता है लाइक हाँ. आफ्टर सम पॉइंट. क्योंकि अगर डर बैठता है ना हाँ. तो 50% गेम हम वही हार जाते हैं. मेरे साथ भी अभी इतना अभी नहीं होता है, बट हाँ. लाइक पहले होता था, लाइक ग्रैंड मास्टर लगा, इंटरनेशनल मास्टर लगा, हाँ. आधे तो उधर ही हार जाते थे. करेक्ट. होता है, बट धीरे धीरे लाइक आपकी जब पढ़ाई अच्छी हो, लाइक स्टडी चेस का प्रैक्टिस अच्छी हो, ओके. कॉन्फिडेंस आ जाता है. ये भी ह्यूमंस ही है, मशीन हाँ. थोड़ी ना वो है. तो है. तो अभी समझ किसी बिगनर को स्टार्ट करना है जिसको चेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, फ्रॉम स्क्रैच, तो क्या करना चाहिए उसको? ओके, अगर आपका बच्चा 5-6 साल का रहेगा, अगर छोटा है और पेरेंट्स फ्री है, लाइक वन पेरेंट इज़ फ्री, तो आप घर पे भी उसको सिखा सकते हो, क्योंकि मटेरियल उतना अवेलेबल है ऑनलाइन. लाइक चेस सीखना और खेलना बहुत इजी है. लाइक 1-2 दिन में सीख सकते हो, लाइक पीसेस कैसे चल रहे हैं, उनके रूल्स क्या है, और खेलना भी. लाइक डिफ़िकल्ट पार्ट है कि जीतना कैसे है, दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट. सो खेलना और सीखना आप बहुत जल्दी सीख सकते हो. दैट इज़ उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. अगर आपके पास लाइक एक पेरेंट फ्री है तो अपने बच्चे को सिखा सकता है. Okay. अगर बच्चा अगर बड़ा हो, लाइक 15-16, वो खुद से ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस देखकर सीख सकता है, हाँ. लाइक बेसिक नॉलेज. ओके. और फिर लाइक आफ्टर बेसिक, फिर इंटरमीडिएट के लिए आपको कोच चाहिए, सो कोचिंग लेना पड़ेगा. कोचिंग करना पड़ेगा. यस. एंड अभी कोच के बारे में बोल रहा है, तो क्या मतलब उनका व्हाट इज द रोल ऑफ अ कोच थ्रू आउट अ चेस प्लेयर्स लाइफ? यस, कोच आई मीन एट हायर लेवल तो बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक जो सारे अभी ऊपर के जो बच्चे हैं, प्रज्ञानंदा वगैरह, तो उनके सारे कोच, आरबी रमेश साउथ के बहुत बड़े कोच हैं. हाँ. और ये सारे बच्चे उनके ही अकेडमी से निकले हैं. हाँ. तो कोच इज़ इम्पॉर्टेंट, बट मैं कहूँगा कि कोच से ज़्यादा लाइक मेंटरशिप इम्पॉर्टेंट है. लाइक हाँ. मेंटर सिर्फ डायरेक्शन दिखाओ, हाँ. क्योंकि अभी ऑनलाइन इंटरनेट की वजह से मटेरियल तो इतना अवेलेबल है, हाँ. बुक्स है, कोर्सेस है, हाँ. और लाइक पेड कंटेंट फ्री में भी मिल रहा है. हाँ. तो अगर आप खुद कर सकते हो, लाइक हाँ. आपकी इच्छा है और टाइम आप खुद दे सकते हो, तो आप खुद से सारा काम कर सकते हो, स्टडी. हाँ. और सिर्फ एक मेंटर रहेगा जो आपको डायरेक्शन देगा कि ये कर. हाँ. सो इट इज इम्पोर्टेंट टू चूज द राइट पर्सन विद यू. अभी मैं लाइक मेरा स्टार्टिंग में मेरे पापा ने मुझे सिखाया, हाँ. और फिर उसके बाद मेरे एक कोच थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ओके. और उन्होंने मुझे दिखा दिया लाइक ये सॉफ्टवेयर रहते हैं, उसको ऐसे यूज़ करना रहता है, ऐसे ऐसे साइट्स है, वेबसाइट्स है. फिर बाद में मुझे जब आइडिया आया तब मैं खुद से करने लगा. उन्होंने मुझे डायरेक्शन दिया, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. वो तो बहुत जरूरी है कि वो तुमको सही से गाइड करे. मेंटरशिप. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जस्ट दे आर टेकिंग मनी हो रहा है ऐसे करके. वही कोचिंग में वही तो प्रॉब्लम है ना. अभी सिखाया गया क्या, क्योंकि बुक्स हाँ. सेम ऑफर कर रहा है, हाँ. कोर्सेस है मेड बाय ग्रैंड मास्टर. करेक्ट. और तो लाइक वी आर परचेसिंग दैट, कोच ऐसा क्या अलग सिखाएगा ना. सो लाइक सिर्फ डायरेक्शन देना इम्पोर्टेंट है. Direction मटेरियल तो है अवेलेबल, हम्म. सिर्फ हमारी इच्छा चाहिए. उतना टाइम हम खुद दे सकते हैं, हम खुद से कर सकते हैं सब कुछ. अभी स्कूल में भी क्या टीचर लाइक सिखाना, वो सिर्फ एक ये हो गया है. हाँ. सारी पढ़ाई हमें सेल्फ कर तो करना पड़ता है. तो उनका गाइडेंस और सही डायरेक्शन देना Yes. वो बहुत जरूरी है. तो फिर हाउ टू चूज द राइट कोच? हाउ डू वी नो कि यार ये इनके पास जाना सही है या फिर इनके पास जाना सही है? तो अभी तो बहुत सारे एकेडमीज खुले हैं, हाँ. ऑनलाइन वगैरह हैं, बट आई विल सजेस्ट कि जो पहले से ही आपके एरिया में जो फेमस कोच रहे हैं, हाँ. और उन्होंने बहुत लाइक बड़े स्टूडेंट्स दिए हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पुणे में जयंत गोखले करके है, तो अभी अभिमन्यु पुरानी ग्रैंड मास्टर है. Okay. आकांक्षा अगवने WIM है, तो उनके स्टूडेंट्स हैं. और लाइक थोड़ा तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा. सो इतने बड़े अगर स्टूडेंट्स को दे रहे तो उनका कोचिंग तो अच्छा रहेगा. हाँ. ऐसे है पुणे में बहुत ज़्यादा, लाइक सोहम दातर है, यंग है वो, और उसके बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नेशनल्स वगैरह में अच्छा काम किया है. वाह. फिर सिद्धांत गायकवाड़ है, हाँ. वो भी फिडे मास्टर है. सो ऐसे लाइक जिन कोच के ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं हाँ. अच्छा लेवल पे, हाँ. आप उनको अप्रोच कर सकते हो. और नहीं तो जो खेल रहे, जो प्लेइंग प्लेयर्स हैं, कंटिन्यूस एक्टिव प्लेयर्स हैं,
आई विल नॉट रिकमेंड ज़्यादा कि जो आपको लाइक इंस्टा पे समझो कौन सा ये आया एडवर्टीजमेंट आया हमारी एकेडमी है हाँ। हम ऐसे वो ज़्यादा फिर वो लाइक बिजनेस माइंडेड में तो माइंडसेट, हाँ। ज़्यादा खर्चा एडवर्टीजमेंट में कर रहे हैं वो और फिर वो इतना अच्छा नहीं है करेक्ट। वैसे वाले बहुत बढ़ चुके हैं अभी हाँ नहीं, क्योंकि सब आज गए कोचिंग, मतलब जिसको आता है वो बहुत सारे एकेडमीज हाँ, तो अपने को कौन भी ले रहा है इवन 1500 ले रहा है अनरेटेड भी कोचिंग कर रहा है तो वैसा नहीं है थोड़ा, मतलब यू शुड नो अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दैट कोच Correct. एंड वो क्या उनका अचीवमेंट है ये है, वो है। रिसर्च करके तो फिर अपने को आइडिया आता है कि वो, और ये जो तूने बोला कि वो उसने प्लेयर को कहाँ से कहाँ तक लेके गए, Yes, वो बराबर। बहुत मैटर करता है। डेडिकेटेड कोच चाहिए जो किसी को चेस में करियर करना है तो आपके हिसाब से आइडियल एज क्या है, मतलब स्टार्ट करने के लिए? टू स्टार्ट चेस लाइक 5-6 इयर्स आइडियल कर है सकते हैं। हाँ क्योंकि आई मीन बच्चों को समझ में आता है तब तक हाँ हाँ। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है एंड फिर यू आई थिंक एक ये भी पता चल जाता है कि इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड और Correct. इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, Yes. क्योंकि पहले चेस था अच्छा था, फिर बीच में थोड़ा कम हो गया, फिर जैसे ऑनलाइन आया, Correct. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आए, Yes. फिर वो और बूस्ट हो गया। और boost तो ऑनलाइन से आप ज्यादा कंफर्टेबल हो या ऑफलाइन? आई मीन वाइल प्रैक्टिसिंग ऑफलाइन तो लगता है बोर्ड पे हाँ। क्योंकि हम खेलते हैं तब ऑफलाइन बोर्ड रहता है हाँ तो ऑनलाइन बोर्ड से अगर प्रैक्टिस कर रहे हो और ऑफलाइन खेलोगे तब वो गलत हो जाएगा लाइक मूव्स ध्यान में नहीं आता है Okay. क्योंकि हमें लाइक आदत होती है ऑनलाइन देखने में हम्म। और फिर खेल रहे हो ऑफलाइन सो लाइक प्रैक्टिस करते हो तो ऑफलाइन खेलो बट दोनों को आना चाहिए लाइक मतलब दोनों बैलेंस करता आना Balance चाहिए। करना आना चाहिए। ओके हाँ नहीं वो तो ज़रूरी है, बट मुझे ऐसा लगता था कि ऑनलाइन काइंड ऑफ, मतलब मैं बहुत ही नेगेटिव साइड देख रहा हूँ, बट Right, जस्ट हाँ। पूछ रहा हूँ कि फिर हम चीज़ें देख, मतलब स्टॉक फिश यूज़ करके, वो एनालिसिस का ऐप यूज़ करके, फिर हम ऐसा हो जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा पर्सन को रियल आइडेंटिफाई नहीं कर सकता ऑनलाइन चेस, ऐसा मुझे लगता है। राइट आई मीन चीटिंग वगैरह होती है होती है इसमें। हाँ हाँ। और लाइक ब्लिट्स टाइम कंट्रोल खेलने पड़ते हैं ऑनलाइन this time. कैनॉट ट्रस्ट क्लासिकल क्योंकि फिर चीटिंग तो हो जा सकती वही, और उसमें भी देयर आर 1177 डेज वाली गेम, Right, right. तो उसमें तो इट इज इफ यू कंप्यूटराइज, करेक्ट वो फायदा नहीं है खेलने नहीं वो तो है। एंड अभी भी इफ यू सी ना, पहले चेस, अभी चेस मैं ऐसे कंपेयर नहीं कर रहा, बट जितना लूडो खेलते हैं ना लोग उतना चेस खेल रहे हैं, इतना हाँ। ज्यादा बढ़ गया है। Yes. ऐसे ही मैंने जस्ट कॉलेज में घूम रहा हूँ तो देख रहा हूँ कोई चेस खेल रहा है, ये खेल रहा है, बट किसी को पता नहीं है कि वो कि कैजुअली खेल रहा है क्या ये कर रहा है। Correct. तो अभी यू आर फोकसिंग चेस एज योर करियर, यू स्टडीड आई थिंक साइकोलॉजी, Psychology. हाँ बीए इन साइकोलॉजी, BA in तो psychology. ओके यू डिड दैट आल्सो Yes. साथ में। तो अभी इफ यू आर फोकसिंग ऑन चेस, तो एट व्हाट पॉइंट यू शुड अंडरस्टैंड कि हाँ मैं इसमें ही कर रहा हूँ, हाँ. एंड एट व्हाट पॉइंट यू फील कि नहीं आई शुड स्टेप डाउन? ओके सो लाइक एज आई सेड लाइक 5-6 years इज द करेक्ट बिकॉज चेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है लाइक चेस का नेचर भी पेशेंस है और इसमें करियर बनाना तो बहुत पेशेंस लगेगा, स्लोली प्रोग्रेस होता है। हाँ तो इसलिए लाइक टिल 10th अगर आपका रेटिंग अबाव 1800 हो तो देन यू कैन टेक रिस्क एंड आई मीन गो प्रोफेशनली इन चेस क्योंकि 1800 इज डिसेंट और थोड़ी मेहनत करके आप 2000 क्रॉस कर सकते हो और थोड़ी मेहनत करके यू कैन रीच 2200। बट अगर 10 तक आपका रेटिंग 1500-1600 है तो आई विल नॉट सजेस्ट Recommend, यस okay. टू टेक चेस प्रोफेशनली। आप फिर लोकली खेलो, हाँ हैबिट के लिए खेलो। इट इज अ गुड स्पोर्ट, मतलब चेस मतलब ऐसे मजा आता है, मैंने देखा पहले अभी, बट व्हेन यू एक्सप्लेन चेस टू समबडी ना इट इज वेरी डिफिकल्ट। यस हाँ बट इफ ही और शी इज प्लेइंग Correct. तो उनको पता है कि हाँ मजा आता है, ये है वो है। नहीं वही आई से कि चेस का एक ही ड्रॉबैक है मुझे लगता है, व्यूअरशिप बहुत कम है। हाँ हाँ क्योंकि नॉन चेस प्लेयर को समझ में नहीं आता चेस में क्या खेल रहे हैं दो लोग, करेक्ट। तो वो बहुत बड़ी आई मीन समस्या है लाइक हाँ हाँ फॉर द और वो ग्रोथ तो- ऑफ चेस correct. एज अ स्पोर्ट। जैसे क्रिकेट फेमस है उतना चेस नहीं है। अभी लॉकडाउन में स्पेशल क्रेडिट लाइक सागर शाह जो चेस बेस इंडिया के CEO है और हमारे कॉमेडियंस समय रैना वगैरह हाँ, उनको देना चाहिए क्योंकि उनके वजह से चेस का बहुत ग्रोथ हुआ। correct. लाइक नॉर्मल पीपल को भी आई मीन जैसे वो ले रहे थे कॉमेडी थ्रू और तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ इसमें। वही और जैसे इंटरेस्ट डेवलप होता है फिर Correct. तुम रेकमेंड करते हो कि भाई ये Yes. करके देख, ये करके देख, एंड काफी बढ़ गया है वो तो है। बहुत बढ़ गया। अभी कुछ टूर्नामेंट्स होते हैं, मैंने देखी है इंटरनेशनल रेटिंग की, जो 5 दिन चलती है। Yes. तो ड्यूरिंग द टूर्नामेंट काफ़ी बार टायर्डनेस होता रहेगा। Correct. ये मेंटल और फिजिकल फिटनेस का
चेस से क्या है, मतलब व्हाट इज द इम्पोर्टेंट? हाँ, सो भी चेस लाइक मेंटली खेलते हैं बट फिजिकल फिटनेस का भी उतना ही बड़ा रोल है क्योंकि यू हैव टू सिट एट दैट प्लेस फॉर 5 आवर्स कंटिन्यूसली ना. हाँ राइट. सो उतना फिजिकल स्टैमिना भी चाहिए. ओके. So I'll say like if you can devote like 1 hour for physical exercise and chess, it is a perfect package. I mean. हाँ. और chess बहुत demanding है हम्म. क्योंकि एग्जॉस्ट हो जाते हैं मेंटली खेल खेल के और 2 राउंड खेलने पड़ते हैं कभी कभी दिन में, तो बहुत स्ट्रेस भी आता है. सो इसलिए फिजिकल फिटनेस का भी उतना इम्पोर्टेंट वही, क्योंकि अगर मैं किसी और को बोलूंगा कि ब्रो मेरी फिजिकल फिटनेस चेस है तो मानेगा नहीं, क्योंकि मुझे लाइक चेस के लिए कौन सा फिजिकल फिटनेस. करेक्ट. बट इट इज इम्पोर्टेंट Yes, एंड बहुत मेंटली भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट. हाँ, क्योंकि अभी मैं बाहर जब हम यूरोप टूर के लिए वगैरह जाते हैं तो एक टूर्नामेंट तो नहीं खेलेंगे ना. लाइक वी हैव टू प्ले 3 or 4 टूर्नामेंट्स इन अ सर्किट, सो कंटिन्यूअसली. ओके. सो टोटल कितने 41 राउंड्स होते हैं और एक राउंड एवरेज पकड़ 4 घंटा चलता है 4 घंटा. और वो भी अगेंस्ट स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट. हाँ. वहाँ पे तुमको कोई पकड़ में पीस नहीं बांटने वाला है. सो वहाँ पे लाइक बहुत छोटे मिस्टेक्स पकड़ के जीतना पड़ता है. तो हाँ, इसलिए बहुत ज़्यादा स्टैमिना लगता है. क्योंकि मैंने देखे लाइक जो प्लेयर जाते हैं आफ्टर 3 टूर्नामेंट्स उनका परफॉर्मेंस डिग्रेड होना चालू होता है. हाँ हाँ. कि वो एग्जॉस्ट रहते हैं, फिर Correct. गलतियाँ हो जाती है, सिली मिस्टेक्स करने लगते हैं, फिर परफॉर्मेंस भी नीचे आता है. आई थिंक फर्स्ट राउंड सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है. Yes. क्योंकि फर्स्ट We are राउंड में fresh. फ्रेश होता है. Right. मेरे साथ भी, मैं जब टूर्नामेंट खेला था ना तो मुझे वो फील हुआ कि, लेकिन ऐसा होता है कि फर्स्ट राउंड में यू डोंट गेट अ वेरी गुड प्लेयर क्योंकि रैंडम हाँ, मिलता है. right. फिर जब अच्छा प्लेयर आता है तब तक आई एम ऑलरेडी एग्जॉस्टेड. हाँ. तो रेस्ट भी बहुत जरूरी होता है. तो अभी इफ यू प्लेड सो मेनी टूर्नामेंट्स, अभी कॉमनवेल्थ में सेकंड आया तो मैं और क्या बोलूँ. तो एक टूर्नामेंट के पहले का प्रिपरेशन कैसा, मतलब तुम्हारा कैसा होता है? ओके, अगर इतनी इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट हो कॉमनवेल्थ जैसी तो आई मीन प्रोफेशनली जो है वो कंटिन्यूसली स्टडी कर रही है. सो ओपनिंग्स वगैरह रहता है. बट अगर स्पेसिफिकली टूर्नामेंट का बोले तो लाइक वी हैव टू फर्स्ट डिसाइड ओपनिंग्स, विच ओपनिंग्स वी आर गोइंग टू प्ले इन दैट टूर्नामेंट. ये बहुत सारे ओपनिंग्स है और हमें वैरायटी भी रखनी पड़ती है क्योंकि ओपोनेंट प्रिपेयर करके आते हैं, गेम्स ऑनलाइन रहते हैं. सो वी टेक 1 ओपनिंग एंड प्रिपेयर डीपली इन दैट. ओके. सो एटलीस्ट ओपनिंग में तो गेम हार ना जाए. ओपनिंग में तो हाँ. And then we have to keep solving problems like chess puzzles for like calculations. Correct. Chess में calculation बहुत important है. You make like calculation error and you lose the game. So calculation training भी important है. प्रैक्टिस गेम्स जो ओपनिंग स्टडी की है उसमें प्रैक्टिस गेम खेलो ऑनलाइन या किसी के साथ, पार्टनर के साथ, तो एक समझ में आता है कि आफ्टर ओपनिंग हाउ टू प्ले द मिडल गेम, ओवरऑल फील डेवलप करने के लिए. करेक्ट करेक्ट. एंड देन नॉर्मली फिजिकल लाइक एक्सरसाइज करो, अच्छे से नींद लो, रेस्ट लो. तो इन ऑल सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा लाइक, थोड़ा थोड़ा बट फिर वो डेडिकेशन के साथ डिवोट करके वो उतना करना है. कंसिस्टेंटली रोज एटलीस्ट टूर्नामेंट हो तो 5-6 घंटे करने पड़ते हैं. हाँ राइट. चेस में भी आई फील कि विजुअलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे तुमने बोला कैलकुलेशन का. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि प्लेयर का स्ट्रेंथ, विजुअलाइजेशन स्ट्रेंथ वेरी करता है, कभी कम रहता है, कभी ज्यादा रहता है. तो जिसका ज्यादा रहता है वो देख पाता है कि तुम टूर्नामेंट्स में तुम अपोनेंट के हिसाब से प्रिपेयर करते हो या फिर टूर्नामेंट के हिसाब से प्रिपेयर करते हो. बहुत बार मैंने देखा कि अपोनेंट का भी कुछ फैक्टर आ जाता है. अभी ड्यूरिंग टूर्नामेंट अगर कोई आपको लगा है अपोनेंट, पेयरिंग जो लगती है, लाइक एक आधा लगा हो, लाइक लेट्स से 1700 का, तो हम उसके पहले गेम्स निकालते हैं जो ऑनलाइन रहते हैं, उसको स्टडी करते हैं वो क्या खेल रहा है. Okay. And we try to find some holes in his play. And फिर उस हिसाब से प्रिपेयर करेंगे. Okay. ओपनिंग में फंस जाता है तो ओपनिंग में एडवांटेज आता है, नहीं तो फिर इन जनरल भी उसका प्ले देखते कैसा है, पोजिशनल है, डायनामिक है, उसका अटैकिंग पसंद है या कैसा है. अगर उसको अटैकिंग पसंद है तो मैं अटैकिंग नहीं खेलूंगा, आई विल गो इनटू सम पोजिशनल लाइन, ऐसे करते हैं. तो ये भी बहुत मैटर करता है. Yes, yes. एंड ये ऑनलाइन गेम्स अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से अवेलेबल है या पहले से ही था? कुछ गेम्स जो टूर्नामेंट्स रहती है सो उनमें ओटी लाइक डिजिटल बोर्ड्स रहता है. डिजिटल बोर्ड फर्स्ट 30 बोर्ड्स. अभी तक इंडिया में लाइक सारे डिजिटल बोर्ड्स नहीं रहते हैं, लाइक फर्स्ट 30 बोर्ड्स, फर्स्ट 10 बोर्ड्स, तब जब प्लेयर उन पे खेलता है तब वो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन आ जाता है. ओके. एट हायर लेवल आपको लाइक टॉप प्लेयर के मिलेंगे ही ऑनलाइन गेम. हाँ, कुछ ना कुछ तो मिलेगा प्रिपेयर करने को. सही है. आई थिंक बहुत सारे लोग अभी यूट्यूब से और जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी पढ़ रहे हैं. एंड इवन हाँ, ये जो chess.com लीचेस है, जब हम खेलते हैं तो उनके भी गेम्स हम निकाल सकते हैं.
करेक्ट रिकॉर्ड होते हैं ना गेम्स हाँ ओके लाइक उनके भी सॉफ्टवेयर है, हाँ। सिर्फ यूजर आईडी डालो, हाँ। सारे गेम्स निकला डेटा पूरा। ये तो सही है। एंड आई थिंक अभी मैंने रिसेंटली कहीं तो भी देखा था कि एआई को वो ट्रेन करते हैं चेस का पूरा और फिर वो खेलते हैं। Yes. तो कहीं ऐसा हो सकता है कि हम हाईएस्ट एआई को भी हरा सकते हैं? ह्यूमन को एआई को हराना इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ। आई मीन इंजिन्स बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। पहले वो कास्परो और कौन सा कंप्यूटर ब्लू डीप समथिंग, अच्छा ओके, नो आइडिया। तब कास्परो ने हराया था उसको। हाँ बट अभी इम्पॉसिबल है, बहुत उनकी strength मतलब है। उनको इतना नॉलेज और बुक्स स्टडी करवा देते हैं करवा देते हैं। कि ऐसा ऐसा राइट। तो उनके साथ खेलने को बट सीखने काफी कुछ मिलता रहेगा। हाँ, सीखने को मिलता है। आई मीन स्टिल उनको भी कुछ कुछ पोजीशन समझ में नहीं आती। उनको okay. हाँ, उनको भी नहीं आती। लाइक हाँ। कभी कभी डेड ड्रॉ रहती है, स्टिल हाँ। दे शो एडवांटेज फॉर सम साइड। उनको वो नहीं समझ में आता, बट अच्छा। आई थिंक वो भी सॉल्व हो जाएगा। हाँ, वो एक्चुअली हम ही उनको सिखा रहे हैं ना कि हाँ। ऐसा कुछ है वैसा कुछ है। कौन से इंजन में थोड़ा ह्यूमन एस्पेक्ट भी आ रहा है, लाइक ह्यूमन Okay. इवैल्यूएशन। यू आर ऑल्सो डूइंग साइकोलॉजी अलॉन्ग साइड, Correct. तो वो कैसा जा रहा है अलॉन्ग मतलब चेस के साथ? हाँ, मैंने लाइक वही सोचा था कि लाइक साइकोलॉजी लूंगा तो चेस को भी मदद हो जाएगा। Okay. चेस इज ऑल्सो मेंटल हाँ, तो इज इट हेल्पिंग यू? इन सम वे, ओके क्योंकि लाइक हर एक स्पोर्ट की अलग अलग, आई मीन अगर प्रोफेशनल है तो उसको मालूम रहता है साइकोलॉजिकल भी कैसे खेलना है। डीप थिंकिंग रहता है इसलिए। हाँ, आई मीन बॉबी फिशर का कोट है ना, आई बिलीव इन गुड मूव्स नॉट इन साइकोलॉजी। बट हाँ, लाइक इन हर एक स्पोर्ट का जो साइकोलॉजी रहता है, एक हाँ। अंदाज आ ही जाता है हमें कि ओके हायर प्लेयर के साथ डरना नहीं है, नहीं तो नर्व्स लूज नहीं करने हैं, कॉन्फिडेंस के साथ जाओ खेलो। ऐसे कुछ लाइक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है, बट साइकोलॉजी ने हेल्प किया कि लाइक ब्रेन को समझना वगैरह, हाउ मेमोरी वर्क्स, फर्क पड़ता है थोड़ा। थोड़ा सा। हाँ, बट एक्चुअली मेरे हिसाब से ये भी साइकोलॉजिकली ही है कि अगर हमने चाह कि फर्क पड़ रहा है। हाँ, पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मैंने किया तो नहीं है बट मैंने ऐसा सुना है हाँ, वो लोगों से। स्पेसिफिकली चेस का फिर स्टडी करना पड़ेगा, साइकोलॉजी हाँ। रिलेटेड टू चेस। नहीं, फिर तो सही है। नहीं, उसका पड़ता है, फर्क तो पड़ता है। हाँ, फर्क तो पड़ता है। Correct. तो अभी इफ प्लेड सो मेनी टूर्नामेंट्स, तो ऐसा कोई टूर्नामेंट है जो तुम्हारा एक मेमोरी सा हो गया है या फिर जो तुम्हें बहुत पसंद आया था, एंड वो दिन के बारे में बताओ कैसा था? मेमोरी तो अभी मैं यूरोप टूर करके आया। ओके, अभी रिसेंटली? यस, अभी। सो दोनों टूर्नामेंट अच्छे गए। लाइक फर्स्ट टूर्नामेंट वार्म अप में गया, बट सेकंड टूर्नामेंट वाज मेमोरेबल वन। लाइक आई प्लेड 2 सॉलिड, एक ही हारा मैं, हाँ 4-5 ड्रॉ हुए और बाकी के जीता, लाइक आउट ऑफ 9। ओके, और सारे हायर रेटेड प्लेयर्स थे। मतलब तो- मोर देन 2200? यस, मोर देन 2200। सो कई लाइक FM को हराया मैंने, इनके साथ ड्रॉ हुई। तो वो टूर्नामेंट अभी तक का आई थिंक मेरा बेस्ट रहेगा। आई लाइक दैट, माई परफॉर्मेंस Wow. ओवरऑल तो वो अच्छा था। तो अभी रिसेंटली तो हाँ, रिसेंटली है तो ज़्यादा। एंड ऑब्वियसली मैं ऐसे पूछना नहीं चाहता, बट स्टिल एनी नेगेटिव, मतलब कोई टूर्नामेंट का जैसे बहुत बुरा लगा हो या फिर मेंटली अफेक्ट हुआ हो, ऐसा हुआ है? बहुत, आई मीन बहुत सारे टूर्नामेंट्स ख़राब भी जाते हैं। लाइक एक टूर्नामेंट था, लाइक आफ्टर 10th, ये आई शेयर द होल स्टोरी ओनली। ओके आफ्टर 10th, लाइक बिफोर 10 मेरा रेटिंग कुछ तो 1900 था। सो मैंने जैसे कहा कि लाइक 10th में यू हैव टू डिसाइड, बट लाइक 10th में थोड़ा पढ़ाई के लिए गैप लेना पड़ा। एंड आफ्टर 10th आई प्लेड वन टूर्नामेंट इन पुणे, हल्कुडे मेमोरियल। हाँ सो उसमें तो कोई प्रिपरेशन था भी नहीं, तभी भी मैंने लाइक कंटिन्यूसली 3 IM को हराया, इंटरनेशनल Wow. मास्टर्स को। एंड उस टूर्नामेंट में मेरा लाइक 150 से रेटिंग बढ़ा, 150। एंड देन आई प्लेड ओडिशा इंटरनेशनल GM इवेंट, एंड उधर मेरा 173 बढ़ा। सो वो आई थिंक मेरा अभी तक का जो पहले वाला प्रिपरेशन था, कंप्लीटली वो मर्ज होके इधर उसका इफेक्ट दिखा। हाँ। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, लाइक हमें जल्दी इफेक्ट नहीं दिखता, Correct, correct. पहले वाले हार्डवर्क का दिखता है। हाँ। तो वो काइंड ऑफ वैसे हुआ। हाँ एंड डायरेक्टली फ्रॉम 1900 आई रीच 2200। वाओ भी वो लीप बहुत बड़ी है, दिखने को अच्छा भी लगता है, हाँ बट एक्चुअली ज़्यादा कौन सी भी चीज़ ज़्यादा में अच्छी नहीं रहती। हाँ। लाइक स्लोली प्रोग्रेस करना कभी भी अच्छा है। okay. तो फिर मुझे मालूम था मेरा रेटिंग तो अभी 2200 हुआ है, बट स्ट्रेंथ है क्या नहीं हाँ। उतनी हाँ ओरिजिनल में। क्योंकि जब मैं 1900 था तब लेट से 2100 तू ले ले, तब वो मेरा हायर हुआ। और साइकोलॉजिकली हायर के साथ में एक ड्रॉ चलती है,
करेक्ट। राइट। अब मैं 2200 हूँ और सेम 2100 मेरे को लगा हाँ और वो अब लोअर है, हाँ, तो मैं क्या सोचूंगा कि लाइक ड्रॉ नहीं, मेरे को जीतना ही नहीं है। पड़ेगा। बट वो इतना भी लोअर नहीं है, लाइक तू भी अभी 2200 का आया है हाँ। और वो भी 2100 है, हाँ 100 पॉइंट डिफरेंस, वो भी स्ट्रांग है करेक्ट। एंड यू डोंट नो योर रियल स्ट्रेंथ। तो फिर वैसे हो जाता है, अगर उनके साथ ड्रॉ हुआ तो साइकोलॉजिकली दैट इज नॉट गुड रिजल्ट फॉर यू व्हेन यू आर 2200, ओके बट व्हेन यू आर 1900 हाँ इट इज़ बेस्ट ना। Best. 2100 के साथ ड्रॉ किया करेक्ट करेक्ट तो मुझे मालूम नहीं था कि मेरा रेटिंग तो कम होने वाला था, ओके। तो स्लोली इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग, क्योंकि नहीं कर पाए, इतना बड़ी लीप लिए तो थोड़ा तो कम आएगा, तो ज़्यादा ही गिरने लगा। एंड एट सम पॉइंट आई केम टू 2000। 2000 ओके। हाँ, सो कितना 200 कम हो गया। हाँ 200 कम हुआ। एंड फिर जिस ओडिशा में मेरा रेटिंग 173 बढ़ा था और मैं हाँ। 2200 हुआ था, नेक्स्ट साल वही ओडिशा आई और उस टूर्नामेंट में 2000 लेकर खेल रहा हूँ मैं। हाँ एंड लाइक थर्ड राउंड ही मैं लोअर रेटेड के साथ हार गया हार गया। एंड -36, लाइक तब के फैक्टर 40 था। करेक्ट। एंड फिर मैं पहले से ही कम हो रहा है और एक लॉस, सो नेगेटिव परफॉर्मेंस चालू है। तो फिर मैं रूम पे आके आई मीन रोया मैं, लाइक बहुत हर्टिंग था वो, क्योंकि अगर ये टूर्नामेंट ख़राब हो रही है और मैं फिर से 1900 जा रहा हूँ तो लाइक कोई पॉइंट ही नहीं ना। फिर रूम पे आके मैं सोचा कि लाइक लेट्स गिव अप, छोड़ देते, चेस हमारी बस की बात नहीं है कि नीचे करो ऊपर जाओ, बहुत टफ है जीतना हाँ। भी। तब लाइक हमारे कुछ अच्छे दोस्त रहते हैं जो मोटिवेट करते हैं, तब उसने मेरे को ऐसे कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भेजे, तब लाइक आई, तो मैंने खुद को ही संभाला, ठीक है अभी ये टूर्नामेंट है, हाँ। इससे तो हम लाइक ये नहीं कर सकते कि आई क्विट, तो आगे के राउंड तो खेलने पड़ेंगे, वही। 8 राउंड से। और एंड डिसाइडेड एंड प्लेड, और वो टूर्नामेंट लाइक मेरी बेस्ट कमबैक स्टोरी थी। कमबैक स्टोरी। हाँ, उसके बाद मैं एक भी हारा नहीं वाह। और 80+ हुआ है। हाँ तो नीचे जाने के बाद लाइक आई वॉज बैक इन टू 2100 एटलीस्ट। अरे वाह। तो फिर उधर से फिर से चालू हुआ और देन आई स्टेबलाइज्ड एट 2200। तो फिर स्टेबलाइज दैट मीन्स यू आर नाउ लाइक स्ट्रेंथ है उतनी 2200 की, तो ये बहुत आई मीन। करेक्ट करेक्ट। हाँ नहीं बट यही टूर्नामेंट में तुम्हारे साथ नेगेटिव भी हुआ। हाँ, और एक गेम अगर मैं हार जाता हाँ। तो आई मीन मैं चेस नहीं खेलता, रिटायर होता मैं। तो बहुत फर्क पड़ता है, एवरी गेम मैटर्स अ लॉट। अच्छा। अभी इधर भी लाइक यूरोप में एक गेम आई वाज कंप्लीटली विनिंग अगेंस्ट 2400 +8 वाली पोजीशन है, मेरे पास क्वीन है एंड आई गॉट एक्साइटेड। ओके। तो मैं जो मुंह मन में आने लगे आई स्टार्टेड प्लेइंग कि कैसे भी खेलो जीतने वाले हैं, बट ही हैड सम रिसोर्सेस ऑफ हिज स्लीव्स एंड में उसने मुझे मेट कर दिया। बहुत बुरा लगा। आई मीन वो जीत जाता तो अगेन टूर्नामेंट का रिजल्ट कुछ और होता, मेरे +50-60 होते हैं, जो मेरे कम प्लस हुए हैं। एक गेम एक मूव मैटर करती है चेस। हाँ, चेस को हम लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। हाँ, कि तुम एक बार मूव कर दो तुम उसको अंडू नहीं कर सकते। तो ये तो काफी अच्छा था कि और कमबैक करने में एक अलग ही मजा है। हाँ, लाइक कमबैक हम लाइक जानबूझ के कमबैक नहीं कर सकते कि चलो अब पहले 3 हारते और फिर कमबैक करते हैं, तो वैसी सिचुएशन आनी ही पड़ती है एंड कमबैक करना भी उतना इम्पोर्टेंट स्किल है और नेचुरली होता है वो चीज, उसको तुम आर्टिफिशियली नहीं कर सकते। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर वो हारा नहीं रहता तो कभी कमबैक का कैसे एक्सपीरियंस रहता है वो भी ना आई नो कि अगर एक टूर्नामेंट खराब जा रही है स्टार्टिंग में तो कमबैक में कर सकता हूँ, ऑलरेडी डन दैट। ये तो सही है। कमबैक नहीं, मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था, मैं नॉर्मल टूर्नामेंट खेल रहा था चिंचवड़ में एंड आई वाज विनिंग 4 राउंड्स में जीता। 5th राउंड पे आई लॉस्ट माय फोन, तो वो फोन घूमने के बाद वो सारा डिस्ट्रैक्शन, फिर टेंशन क्या कि घर पे कैसे बोलूं, और सिर्फ 6th-7th राउंड में हार गया और मैं बहुत अच्छे फॉर्म में था, फर्स्ट टेबल पे ही खेल रहा था। तो मुझे इतना बुरा लगा एंड चलो चेस वाज नॉट कि मैं उसको डिवोट करने वाला था, बट बिकॉज आई एम प्लेइंग सो वेल एंड इट रियली अफेक्ट्स कि ऐसा मतलब ये हो गया था कि कहा मैं टॉप 10 में आने वाला था, मेरा नाम ही नहीं है। मेंटली फ्रेश रहना और इतना, तो आई थिंक जैसे टूर्नामेंट डे पे तुम सुबह का तुम्हारा रूटीन वो सब भी बहुत मैटर करता है। बहुत मैटर है, लाइक नींद अच्छी होना, लाइक नाश्ता पसंदीदा होना, लाइक एवरीथिंग मैटर्स। हाँ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, बाहर से अगर तू पूछेगा ना अभी भी सब इतना नहीं उसको इम्पोर्टेंस देते। हाँ। मतलब जिनको नहीं पता वो तो नहीं देते, Correct. जिनको पता है उनको भी ऐसा लगता है कि इतना देने की क्या जरूरत है, बट इट गोज लाइक एट
सम पॉइंट लाइक आफ्टर वन पॉइंट जब दो प्लेयर्स लगते हैं तब वो स्ट्रेंथ वाइज इक्वली लाइक इक्वल स्ट्रेंथ के रहते हैं. आई मीन उनका स्टडी वगैरह भी इक्वली रहता है क्योंकि दोनों 5-6 घंटे डिवोट कर रहे हैं, दोनों के पास एक्सपीरियंस है, रेटिंग अच्छा है, दोनों ने बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को हराया रहता है. बट फिर हाँ वही लाइक वो दिन कैसा जा रहा है, लाइक आप सुबह से उठकर उस टाइम तक वो क्या कर स्पेशली रहे हो? एक दिन हाँ. जिसको लाइक जिसका मूड अच्छा रहेगा वो जीतेगा. हाँ. ऐसे. तो वो एक्चुअली बाकी स्पोर्ट्स की तरह हो गया. ऑन द पर्टिकुलर डे Yes. whoever is stronger हाँ. will win. Correct. एंड तुम किसी को मतलब ऐसे स्पेसिफिकली फॉलो करते हो चेस में? मैग्नस कार्लसन, आनंद, ऐसे किसी को? अभी जो मेरे स्टाइल के जो प्लेयर्स है लाइक विदित गुजराती. विनीत गुजराती. हाँ. कार्लसन को कभी फॉलो नहीं किया. आई मीन अच्छा है. आई मीन सबको उसके गेम्स पसंद. अभी वर्ल्ड कप चालू है, ओके. कल भी उसके गेम देख रहा था. तो ही डिफीटेड विंसेंट केमार. बट विदित गुजराती को किया है. ओके. नहीं तो जो ओपनिंग में खेलता हूँ हाँ. तो उसके जो एक्सपर्ट्स हैं उनको फॉलो करता हूँ. ओके. तो ऐसे कुछ प्लेयर है. जिनको तू मतलब यस. फिर वो कैसा होता है कि यू वॉच देयर गेम, स्टडी, और थोड़ा हाँ. सा ऐसा लगता है कि हाँ जो स्टाइल सेम है Style same. इम्प्रूव होता है मेरा भी गेम के गेम पे. एंड अभी जैसे अभी इंडिया के प्लेयर्स है Yes. तो आई यूज टू वॉच पहले बिफोर Correct. आनंद जब टॉप में थे. Yes. उसके बाद इतना ट्रैक नहीं रख पाया, बट अभी प्रज्ञानंदा एंड ऑल प्लेयर्स हैव कम. मुकेश. सो व्हाट डू यू फील कि कैसा है इंडिया का फ्यूचर? इंडिया का फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है ना. अभी इंडिया का नंबर 1 प्लेयर इंडिया का आनंद को भी पीछे डाला है. आनंद को भी? मुकेश इज नाउ इंडियाज टॉप प्लेयर. हाँ, I've heard. इंडियाज हाँ. नंबर 1 प्लेयर मुकेश. हाँ. सो ऑलरेडी आनंद का भी एरा खत्म हो चुका बट ही है. वाज गुड एट हिज टाइम. यस अभी तक. अभी जस्ट ना गुकेश ने क्रॉस किया उसको Okay. रेटिंग वाइज. सो गुकेश है, प्रज्ञानंदा है, अर्जुन एरिगासी है, निहाल सरीन है, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं जो लाइक इलाइट ग्रैंड मास्टर्स ग्रुप ज्वाइन किया है अबाउट 2700. एंड इनकी एज भी इतनी मतलब आई थिंक प्रज्ञानंदा इज 18, वेरी 17 हाँ. बहुत यंग है. बहुत यंग है ना. नहीं ये मैंने काफी रेटिंग टूर्नामेंट्स में भी ऐसा देखा है कि 7 साल के बच्चे चेयर पे खड़ा होके चेस हाँ. खेल रहे हैं. तो और वो है प्लेयर्स है मतलब Yes, अच्छा बहुत खेलते हैं, strong हरा भी players देते हैं. एंड ऑफ कोर्स इतना आइडिया तो नहीं है, बट एज भी मैटर करता है. चेस में एज इतना मैटर नहीं करता. नहीं करता मतलब तुम, क्योंकि मेरे साथ ऐसा टूर्नामेंट में हुआ था हाँ. कि जो ओल्ड एज वाले थे ना वो टाइम पे मतलब यूजुअली हाँ. मार खा रहे थे. राइट. सो लाइक ओल्ड एज लाइक आफ्टर 50 लेट्स से तो थोड़ा समझने में थोड़ी दिक्कत होती है लाइक प्रोसेस करने में. हाँ. और बट वो उनका- खेलते बहुत अच्छा है. हाँ लाइक क्लासिकल गेम खेले तो लाइक दे विल गिव यू टफ Tough. फाइट. बट रैपिड उनको लाइक इवन मूवमेंट क्लॉक दबाना रहता है झट से, तो वो नहीं होता है. बट But- एज का वैसे कुछ इतना है नहीं चेस में. Like other एनीवन sports. कैन प्ले. हाँ. हाँ. ओके. तो यू स्टार्ट एट एनी एज, यू कैन Yes, even there was this, I don't know his name, but 100 years के थे वो, हाँ. and he was like ग्रैंड मास्टर, ओके. ओल्डेस्ट ग्रैंड मास्टर 100 years के. वाओ. So सब खेलते हैं like right from 4 age like हाँ. 4 years to हाँ. 100 सब खेलते हैं. So इधर तो इट इज नॉट अ फैक्टर व्हिच विल स्टॉप. एज का नहीं है. करेक्ट. मे बी आफ्टर 50-60 प्रोफेशनली आप बंद कर दो, बट मजे के लिए खेल सकते हो ना. हाँ, मजे के लिए तो खेल सकता है. आई थिंक बहुत सारे लोग अभी बहुत ऐसे ही इंजॉयमेंट के लिए, हाँ. माइंड फ्रेश होता है. माइंड फ्रेश रहता है. मैंने ऐसा बहुत बार देखा है ओल्ड कि एज में उनका टाइम भी निकल जाता है चेस खेल के. एग्जैक्टली ये तो बहुत पॉजिटिव बात है. कॉग्निटिव भी उनका अच्छा रहता है. जो चेस खेल रहे हैं उनकी मेमोरी अच्छी रहती है. एक ओल्ड एज जो पीपल थोड़ा भूलने लगते हैं वगैरह, वैसा नहीं होता उनके साथ. तो क्या तेरे हिसाब से हमारे एज के लिए चेस के बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? चेस के तो बेनिफिट्स है लाइक डिसीजन मेकिंग है, प्लानिंग है, कैलकुलेशन करते हैं. करेक्ट. देन हम ओपोनेंट के ऑप्शन लाइक एंटिसिपेट करते हैं, वो लाइक वे ऑप्शन करते हैं दोनों में से अच्छा कौन सा है. करेक्ट. फिर विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकली थिंकिंग. आई मीन बहुत सारे लाइक, और मैं पूरे लिस्ट बना सकता. हाँ वो इट जस्ट गोज ऑन. एंड आई फील कि जो चेस नहीं भी खेल रहे हैं ना, मतलब जो प्रोफेशनली नहीं हाँ. खेल रहे, बट उनको अगर ऐसे रेगुलर बेसिस पे खेल रहे तो Yes. उनका ये स्किल ग्रो हो रहा है. हाँ, इवन आपको प्रोफेशनली नहीं खेलना है, हाँ. आप आपके बच्चे के लिए चेस लाइक चालू करिए, क्योंकि हाँ. एकेडमिक्स में बहुत हेल्प होती है, पेशेंस भी बढ़ता है उनका, एंड स्लोली लाइक पैटर्न रिकॉग्निशन सब कुछ बढ़ता है धीरे धीरे. एंड थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया, वो हाँ. थोड़ा टाइम खेलेगा, फन के लिए खेलेगा, फिर अगर अच्छा Fun. कर देता है तो वी कैन पुट हिम. चेस बेसिकली कॉग्निटिव गेम ही है, तो
कॉग्निटिव जो सारे एस्पेक्ट्स है वो हाँ, इम्प्रूव हाँ। होते हैं। और लाइक मेरे ही देख लो ना, लाइक हाँ सो चेस में इतना लाइक एकेडमिकली ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ा मुझे, हाँ, वही। तो लाइक 12th में बट अच्छे परसेंटेज आए हैं। मैं वही बोल रहा ना 99 एंड यूजुअली कैसा है जो दूसरे बोर्ड्स है उनके इसमें ये देखने मिलता है 99 और ऐसा, हाँ। अपने इधर एसएससी में Correct. 95 94 ऐसा दिखता है, तो वो देखा था लाइक कि वाह। एंड हाँ ये बात भी सही है कि वो मेंटली एकेडमिक्स में हेल्प करता है, मतलब बाय इटसेल्फ हेल्प By करता itself, है, nature तुमको ही कोई है। एक्स्ट्रा पुश देने की Correct. जरूरत नहीं है, वो तो बहुत अच्छा है। लाइक चेस खेलो, चेस का स्टडी करो और फिर धीरे धीरे ट्रांसफर होता है लाइक Correct. लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स में। ओके लाइक डिसीजन मेकिंग लाइक 9th में ही मैंने डिसाइड किया था एंड दैट वाज लाइक वेरी इजी डिसीजन। बट इट लुक्स डिफिकल्ट फ्रॉम आउटसाइड, मतलब हाँ। अगर अभी बोला कि तूने 9th में डिसाइड किया कि तो 9th अभी क्या करने आ रहा क्या है, करना? इट इज वेरी हाँ, एक लॉन्ग टर्म भी थिंक करना, हमें हाँ, लॉन्ग टर्म vision. प्लानिंग की विजन Correct. वो डेवलप होती है। नहीं ये तो बहुत जरूरी है। एंड अभी रिसेंटली आई रिमेम्बर मैं एक टूर्नामेंट में एनरोल कर रहा था, Okay. तो उस टूर्नामेंट में ना उसका जो टूर्नामेंट टाइप था ना वो कुछ और था, इट वाज आई थिंक जैसे हम सप्लाई खेलते हैं और ऐसा कुछ खेलते फिशर हैं। एंड हाँ फिशर रैंडम। कि मेरे टूर्नामेंट हाँ तो मैं अब मतलब हाँ। मैं तुझे पूछा, तुझे ही पूछा था क्या? हमने ऑर्गेनाइज किया। करेक्ट, तो मैंने तुझे पूछा था तो तूने बोला था कि इट इज नॉट नॉर्मल चेस, हाँ, normal. इट इज डिफरेंट चेस। तो ये जो अलग अलग टाइप के चेस भी आए हैं, Yes. तो वाई मतलब क्या उसका क्यों है, मैं पता नहीं आया। ना जो हमारा नॉर्मल चेस है ना, हाँ। तो इंजन्स के वजह से थोड़ा उसका जो ब्यूटी है थोड़ा हाँ। कम हो चुका है ओके एंड बहुत थियरी भी डेवलप्ड हो चुकी है। Oh. थियरी आई मीन ओपनिंग थियरी। सो होता क्या है लाइक फर्स्ट 20 मूव्स रट के आते हैं लोग, ये बेस्ट मूव्स है, थियरी शोज इंजन शोज कि दिस इज द बेस्ट मूव, तो दूसरा क्यों खेलेंगे ना। हाँ तो उनको मालूम रहता है कि इसके बाद यही खेलना है, इसके बाद वही खेलना है। तो नेचुरल जो थिंकिंग है वो ओपनिंग में तो कुछ नहीं होता इतना, फिर वो मिडल गेम में वो स्किल्स चालू होते हैं ओरिजिनली, तब तक तो सारा बुकिश नॉलेज रहता है। तो थोड़ा इसलिए चेस का ब्यूटी उसके वजह से कम हो चुका है। अब ये फिशर रैंडम जो है उसके जो इनिशियल पोजीशन है पीसेस के वो अलग अलग है, ओके लाइक किंग कौन से भी जगह, हाँ। रुक कौन से भी जगह पे, हाँ। सारा शफलिंग होता है। ओके और वैसे 960 पोजीशंस आ सकते हैं, हाँ। शफलिंग कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन, इसीलिए उसको 960 चेस भी बोलते हैं। तो वहाँ पे लाइक राइट फ्रॉम फर्स्ट मूव टू थिंक, उधर थ्योरी डेवलप नहीं है। हाँ। लाइक किधर किधर थ्योरी डेवलप करोगे, 960 पोजीशंस है। तो हमारे टूर्नामेंट में 9 राउंड्स थे, तो हम लाइक एवरी राउंड नई पोजीशन, राइट फ्रॉम फर्स्ट मूव टू थिंक। सो यू कैन नॉट प्रिपेयर। नो प्रिपरेशन। ओके हमने उनको 3 मिनट का समय दिया था बिफोर स्टार्ट ऑफ द राउंड, हाँ। थोड़ा सोच लो लाइक कि ऐसा डायरेक्ट, तुम्हारा पोजीशन है। हाँ इस पे सोचो और फिर 3 मिनट के बाद गेम स्टार्ट हो जाएगा। ओके दैट इज लाइक वेरी ओरिजिनल, मे बी दैट इज फ्यूचर ऑफ चेस ऑल्सो, ओ क्योंकि इतना थियरी हो चुका है एक पॉइंट पे। ये होता है आई मीन बस थियरी किधर किधर वो ध्यान में रखेंगे। Correct. और थियरी पे गेम जीत रहे भी है लोग, हाँ जस्ट वो फिर ये हुआ लाइक हमारे एकेडमिक्स में सब हम ध्यान में रखते हैं ना, लाइक मेमोरी पे है, मेमोरी पे। हाँ एजुकेशन सिस्टम का वो फेलियर ही है, हाँ। बट तो सेम वो चेस में भी आने लगा है। तुम एक मूव थियरी की भूल जाओ, ओपोनेंट को थियरी मालूम है तो वो हरा देगा आपको। करेक्ट फिर वो मैटर नहीं करता अपना स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रेंथ कितना है, आप हायर हो लोअर हो, हाँ। लोअर भी प्रिपेयर करके आता है। तो इसलिए फिशर रैंडम इज लाइक ट्रू स्ट्रेंथ समझेगा। हाँ क्योंकि तुमको एक पोजीशन हाँ। दी है, अब तुम रैंडम पोजीशन है, हाँ। फिर आप ओपनिंग का कितना सक्सेस है उधर नहीं चलेगा, आपका उधर तो होगा ही नहीं ना वैसा कुछ। ट्रू स्ट्रेंथ एंड दिखेगा। रूल्स विल बी सेम लाइक। कैसलिंग के थोड़े से अलग है, Okay. बाकी पीसेस चलते हैं। किंग भी हिल जाता है। करेक्ट किंग हाँ, हाँ, हाँ। वो इजी है आई मीन। तो ठीक है, वो तो सबको ब्रीफ कर देते रहेंगे पहले से। सो यू थिंक वो जरूरी है, होना ही चाहिए? फिशर रैंडम हाँ, क्योंकि बाहर से ऐसा मैंने जब देखा है लाइक यार मैं सादा नॉर्मल चेस खेल रहा हूँ, मैं यहाँ Right. कहाँ जाऊँ। हाँ बट अगर मेरा कोई अच्छा एस्टेब्लिशमेंट हो जाए, Correct, मैं yes. यूज टू हो जाऊँ, तो मैं नॉर्मल चेस में अगर आपका 1800 के अबव रेटिंग है तो फिशर रैंडम है, आपको मजा आता है। मजा आएगा। कैसा था रिस्पॉन्स टूर्नामेंट का? हमने सोचा था वैसा नहीं था, Okay. लाइक हमने हायर प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने को, और ये कुछ नया कॉन्सेप्ट भी था। हाँ सो पुणे में तो सेकेंड टाइम हो रहा था ये, ओके। सो इतने हायर प्लेयर्स जितना सोचे थे इतने आए नहीं, बट ओवरऑल रिस्पॉन्स वी गॉट लाइक 65 एंट्रीज। एंड हमने लाइक वी आर नॉट बिजनेस माइंडेड, हमें क्वालिटी इंप्रूव करना था, Correct. तो इसलिए हमने अनरेटेड को मना किया। लाइक उनके 20-30 एंट्रीज में तो आ जाते हैं, हमें कॉल्स भी आ रहे थे। हाँ सो प्रॉफिट लाइक मनी वाइज हमें कुछ नहीं हुआ, हाँ
बट क्वालिटी ऑफ टूर्नामेंट वॉज गुड Good, लाइक हाँ. सारे और- रेटेड प्लेयर्स थे, ओनली रेटेड प्लेयर्स और कुछ नया फॉर्मेट. और हमारा अप्रोच ऐसा था कि जो नॉर्मल टूर्नामेंट्स होते हैं जो उनके ड्रॉबैक्स रहते हैं, लाइक राउंड चालू नहीं होता टाइम पे, फिर वो गेस्ट आते हैं, गेस्ट को किसको सुनना रहता है, राइट. हमने वो सारे निकाल दिए थे. लाइक हाँ, झट से इनॉग्रेशन कुछ नहीं था, 9 पे बोला था, 9 पे राउंड स्टार्ट किया, जब पीडी बोला उस पर पीडी स्टार्ट किया. गेस्ट भी एक ही बुलाया, लाइक अभी स्पॉन्सरशिप लिया तो बुलाना पड़ेगा. तो एक और झट से सब खत्म किया, ऐसे कुछ ड्रामा नहीं हाँ, और क्विक. हाँ. अभी खुद चेस प्लेयर तो समझ में आता है कि कौन सा टूर्नामेंट कैसे चाहिए हमें. टूर्नामेंट Exactly. तो सेम एक्सपीरियंस हमें देना था. नहीं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि कैसा है, एक टाइम के लिए तुम किसी को कर रहे हो, हाँ ठीक है वो ही हैज अचीव्ड और जरूरी भी है, लेकिन वो हमारे प्लेयर्स के लिए वो इतना अट्रैक्टिव नहीं रहता है. तो ये तो अच्छा है कि तुमने किया. अभी नेक्स्ट जेन तो नाम भी हमारा नेक्स्ट जेन चेस. नेक्स्ट जेन चेस, यस. जैसे न्यू कॉन्सेप्ट्स. अभी नेक्स्ट टूर्नामेंट हम सोच रहे हैं वो अर्मागेडन की रहेगी. हाँ हाँ अर्मागेडन मीन्स लाइक चेस अगेन इज फेमस फॉर ड्रॉज. हाँ. ड्रॉज की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. फिर अर्मागेडन ऐसा फॉर्मेट है कि वहाँ पे ड्रॉ नहीं रहती, ड्रॉ कर ही नहीं सकते. कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो फॉर्मेट ऐसा रहता है कि वाइट के पास 5 मिनट एंड ब्लैक के पास 6 मिनट. नहीं, आई थिंक उल्टा हुआ. वाइट के पास 6 मिनट, हाँ. ब्लैक के पास लेट से 5 मिनट. हाँ अगर ड्रॉ हुई तो वाइट हारा, हाँ पता है. वाइट हारा, Correct, तो यू correct. कैन नॉट मेक ड्रॉ. हाँ, क्योंकि हम ऑलरेडी वाइट का एडवांटेज है. टाइम एडवांटेज दे रहे हैं, हाँ, तो वैसे. तो ब्लैक के लिए थोड़ा बेनिफिशियल है ना, अगर उसने क्लोज पोजीशन के लिए तो. हाँ, उतना आसान नहीं है, उतना आसान लगता है नहीं कि है, ड्रॉ हाँ. कर सकते हैं, बट हाँ हाँ राइट. वो गेम का नेचर है वैसे. बट 1 मिनट का एडवांटेज भी तो है ना Advantage. वाइट को. हाँ राइट. दोनों है. तो ये तो जरूरी आई थिंक कि जो लोग अभी एक सीरीज में खेल रहे हैं, हाँ, तो उन लोग के लिए अगर ये कुछ करते तो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसा हो वी जाता वांट टू है. ब्रेक दैट नॉर्मल प्लेइंग साइकिल. चेस के बहुत सारे वेरिएंट्स है, फिशर रैंडम है, अभी अर्मागेडन है. हाँ. कभी हम टीम चैंपियनशिप ले सकते हैं, हाँ. कभी ओल्ड स्कूल नॉकआउट ले सकते हैं, हाँ, लाइक वर्ल्ड कप जो चालू है वैसे. old school. हमें कुछ ऐसा अलग करना है, Right, नॉट right. नॉर्मल चेस. व्हेन आई वाज इनटू चेस ना, मुझे एंटी चेस पता था और सप्लाई पता था. ये ज्यादा ही फन गेम्स हाँ, है. वो थोड़ा डिग्रेड कर रहा था आई थिंक. नहीं, ये ज्यादा लाइक फन गेम्स है. फन गेम्स. हाँ, वो तुम टूर्नामेंट प्रिपेयर नहीं कर सकते Tournament उससे. तो अभी बट व्हेन आई एम सी कि इतना सब कुछ है, 4 प्लेयर चेस भी है क्या कुछ? हाँ, बट वो वो chess इतना है कि- रेलेवेंट नहीं रहेगा. नहीं है ना. हाँ मैंने देखा था, बट वो बड़ा बोर्ड था. है, chess.com पे है, 4 प्लेयर चेस. बट वो सारे फन में आते हैं. ओके. ये फिशर रैंडम वगैरह स्टिल दे आर लाइक स्टिल मोर ऑफ थिंकिंग. थिंकिंग. ओके, सो यू प्लेड फिशर एंड. नहीं, मैं अभी ऑर्गेनाइजर के रोल में था, अच्छा, तो- प्ले. हाँ. बट फर्स्ट टूर्नामेंट जो हुई थी पुणे में, मैंने खेला था. हाँ, कैसा था? एक्सपीरियंस अच्छा, अच्छा था. मजा आता है. कंप्लीटली न्यू पोजीशंस, ओरिजिनल लाइक स्ट्रेटजी. एंड हियर आई डोंट थिंक कि तुम अपोनेंट को देख के भी प्रिपेयर कर सकते हो, हाँ. क्योंकि अलग वे में तुमको अलग pieces से. बाहर डेवलप करने पड़ेंगे, सेट करना पड़ेगा. आई थिंक ये फ्यूचर लग रहा है चेस. हाँ, फ्यूचर में. क्योंकि जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है Correct, theory में correct. और इंजिन इतने स्ट्रांग हो गए हैं. फिशर रैंडम, इवन फिशर रैंडम का वर्ल्ड कप भी होता है. वर्ल्ड कप. ओके. वर्ल्ड कप, हाँ, चेस का. स्ट्रांग प्लेयर्स खेलते भी है. टूर्नामेंट्स की फ्रीक्वेंसी क्या रहती है जो अपने इधर ऐसा हो रहा है, मतलब Normal. हाँ नॉर्मली हर संडे को पुणे में तो रहते ही है. हर संडे को पुणे में. पुणे, मुंबई जैसे जगह पे हर संडे को टूर्नामेंट रहता है. ओके. सो लोकली प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है. जो हम लाइक वीक में जो प्रिपेयर करेंगे, स्टडी करेंगे, वो टूर्नामेंट में खेल लो. ओके. हाँ, ट्राई इट आउट. क्योंकि टूर्नामेंट अगर समझो नॉर्मल भी रही तो एक आइडिया आ जाता है ना कि Yes, तुम हाँ. कैसे किस दोस्तों के साथ खेलना अलग है और टूर्नामेंट वाला फील लेकर खेलना. टूर्नामेंट में वो एक इंटेंस प्रेशर भी आ जाता है. Yes. और बहुत फर्क पड़ता है. हम बोलते हैं कि प्रैक्टिस हाँ. करना है, बट टूर्नामेंट विल शो यू. Yes, टूर्नामेंट प्रैक्टिस. तो एवरी संडे होता है. हाँ. एंड अगर रेटिंग टूर्नामेंट खेलना हो तो रेटिंग भी अभी पुणे मुंबई जैसे होते हैं. अभी कल ही है 13 को रैपिड रेटिंग है वो. हाँ हाँ पता है, मैंने देखा. हाँ, हाँ. क्लासिकल टूर्नामेंट भी होते हैं अगर आप रेडी हो थोड़ा ट्रैवल करने के लिए. हाँ. अराउंड महाराष्ट्र ओके. टूर्नामेंट्स होते हैं. तो पहले बहुत कम फ्रीक्वेंसी थी. हाँ, अभी but बढ़ गया. बहुत बढ़ गया. करेक्ट. कौन सी ना कौन सी टूर्नामेंट चालू रहती है. एंड अभी जैसे हम लोकल है, पुणे के ही है, हाँ. तो यहाँ पे टूर्नामेंट खेलना इज गुड, बाहर खेलना इज गुड, वो मैटर करता है. नहीं, अभी होता क्या है कि हम बहुत सारे पुणे में खेलते हैं. हाँ. तो एक पॉइंट के बाद सेम प्लेयर्स ही लगेंगे ना आपको. हाँ हाँ, इसलिए तो बाहर जाकर थोड़ा अलग प्लेयर्स के साथ Okay. खेल सकते हैं. बट बाकी कुछ चेंज नहीं होता. बाकी कुछ चाहिए नहीं. बाकी तो बाकी सेम. हाँ,
लाइक अच्छा। ट्रैवल एक्सपीरियंस। हाँ वो एक है, और वहाँ पे फिर लेकिन मैं बोलता हूँ कंफर्ट जोन मिलता है ना जब तुम पुणे में खेलते हो। हाँ। कि तुम रेस्ट ले सकते हो। उधर कैसा है, कुछ चीजें शायद अपने तरफ से नहीं जाएगी, अचानक से लाइट गई, ये बंद हो गया, वो हो गया, और फिर वो नेक्स्ट डे टूर्नामेंट पे मेंटली। वो तो होता है क्योंकि अभी बाहर भी हम गए थे तो वहाँ तो वो तो ज़्यादा ही, मैं तो फर्स्ट टाइम गया था। हाँ। तो इंडिया में तो खाने के हाल नहीं होते हैं, हाँ। बट वहाँ पे सारा खाना भी लेकर जाना पड़ा। फिर उनके लाइक अकोमोडेशन थोड़ा अलग टाइप है, तो वो एडजस्ट करना भी और वो अच्छे से मिलना भी इम्पोर्टेंट। तुरंत अडेप्ट होना पड़ता है उस एनवायरनमेंट से, वरना अगर हमको टाइम लगता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। सही है, सही है। सो अभी व्हाट इज योर फाइनल एम, अभी क्या है, व्हाट इज यू, तू अपने आप को कहाँ देखता है आफ्टर सम इयर्स? अभी तक तो मुझे समझ में आया कि चेस बहुत ब्रूटल है और यहाँ की आगे की जर्नी तो बहुत ही टफ है। अभी मैं 2200 हूँ। अभी मेरा BA ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, सो नाउ आई कैन गिव लाइक डिवोट होल ईयर टू द चेस। अब 1 साल का तो मैंने गैप लिया है, और मेरा फर्स्ट टाइम रहेगा कि 2300 क्रॉस करूँ, लाइक फिडे मास्टर का जो है। अगर लाइक दिस एट द एंड ऑफ द ईयर मैं क्रॉस होता हूँ 2300 एंड स्ट्रॉन्ग 2300, सिर्फ क्रॉस होना ही नहीं, वहाँ पे जाकर आप पहली टूर्नामेंट की तरह। हाँ वैसे नहीं करना। हाँ, सो सेटल हो जाता हूँ 2300 में, देन आई कैन थिंक ऑफ गिविंग 1 more year फॉर IM, क्योंकि अगेन जैसे उतना आगे जाओगे उतना डिफिकल्ट होते जाता है। करेक्ट। सो अभी तो सोच वही है, क्योंकि टूर्नामेंट्स प्लान्ड है, फिर से बाहर जाने के भी चांसेस है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर अगर 2300 क्रॉस कर लेता हूँ तो और 1 ईयर दूंगा, नहीं तो फिर लाइक प्रोफेशनली रिटायर होने का सोच रहा हूँ। देन आई कैन स्टार्ट लाइक कोचिंग एंड ऑल, क्योंकि अभी लाइक एज भी 21 है, तो यू टू डिसाइड योर करियर ऑल्सो, मनी एस्पेक्ट ऑल्सो। सो चेस कोचिंग, और फिर मैं लोकल टूर्नामेंट्स खेल सकता हूँ। लाइक बिकॉज ऑफ माई रेटिंग आई कैन नॉट प्ले नॉर्मल क्लासिकल टूर्नामेंट्स विच आर हैपनिंग इन पुणे और इंडिया। मेरे को एक सर्टन टाइप्स के टूर्नामेंट्स ही लगता है, लाइक स्ट्रॉन्गर वाले, लाइक अबाउट 2000 रेटिंग। लाइक नीचे वाले में नहीं खेल सकता क्योंकि रेटिंग अफेक्ट होता है। सो अगर मैं प्रोफेशनली बर्न कर रहा हूँ और प्रोफेशनली एम नहीं है IM GM का, देन आई कैन स्टार्ट प्लेइंग दीज टूर्नामेंट्स, प्ले फॉर प्राइज मनी, एंड उन टूर्नामेंट में फर्स्ट आने का ट्राई कर सकता हूँ। यस, एंड कोचिंग कोचिंग इज आल्सो, हाँ, जो अभी मिला है वो दूसरों को दे सकता हूँ। और फिर साइकोलॉजी में भी मेरे एम्स है, वो भी अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, लाइक क्रिमिनल फॉरेंसिक साइकोलॉजी, इसमें इंटरेस्ट है। लेकिन अभी चेस के वजह से इतने अगर कॉग्निटिव स्किल्स बड़े हैं, तो व्हाई नॉट यूज इट समवेयर। और क्राइम आई मीन है, मुझे पसंद है क्राइम सीरीज, वेब सीरीज सॉल्व करना, ऐसा कुछ। हाँ, सेम वो एक्चुअली चेस प्लेयर्स में आ ही जाता है। करेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो और वो थोड़ा एडवेंचरस भी है, थोड़ा मजा आता है, टफ प्रोफेशन भी है, और चेस भी कुछ कम नहीं है, तो थोड़ा उधर जा सकता। और इतना तूने एफर्ट दिया है यहाँ तक आने के लिए, तेरा स्किल डेवलप हुआ है, तो एंड बेस्ट, आई थिंक बेस्ट है तेरे लिए यही स्किल यूज करना। हाँ, चेस में कभी छोड़ूंगा नहीं, वो तो है, इट विल बी ऑलवेज विद मी। सिर्फ लाइक प्रोफेशनली वो डिसीजन इम्पोर्टेंट। करेक्ट, क्योंकि लाइक अगर आपका सब कुछ अच्छा हो तो लाइक IM 1 साल में भी होते हैं लोग, नहीं तो फिर 7-8 साल भी उनको घिसना पड़ता है। थोड़ा लक का भी फैक्टर है। चेस एक्सपेंसिव गेम भी है, बाहर जाकर खेलना तो बहुत पैसे भी लगेंगे टूर के लिए। बट वंस यू आर एट अ गुड पोजीशन जैसे IM GM, तो आई थिंक बहुत सारे टाइम वो लोग कंसिडर करते हैं ना कि अगर IM हो रहे हैं तो फिर लाइक यू आर सेटल्ड प्रोफेशनली। उनको कोचिंग को भी बहुत ज्यादा रेट्स मिलते हैं, और टूर्नामेंट के लिए भी उनको मनी मिलता है। यू कम एंड प्ले, विल गिव यू मनी, अपीयरेंस मनी, बिकॉज़ यू हैव अचीव्ड दैट मच। यस, और वो प्राइस को भी तो वो जीतते ही जाते हैं। फिर उनको अकोमोडेशन वगैरह फ्री रहता है, सारे फैसिलिटीज भी मिलते हैं। एटलीस्ट IM होना जरूरी है अगर प्रोफेशनली आप खुद को बोल रहे हैं। करेक्ट। वो एक सर्टेन लेवल तुमने क्रॉस कर दिया, फिर इट इज योर डिसीजन कि शुड आई कंटिन्यू और शुड आई डू कोचिंग। फॉर मी फिडे मास्टर एक डिसेंट लेवल है, तो इसलिए पहला टारगेट वही है। बाद में अगर वो हो रहा है तो फिर IM के लिए सोच सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ। यस, अच्छा था एंड अच्छा लगा तेरे से बात करके, बहुत अच्छा था। गाइज, अगर आपको किसी को चेस चालू करना है
तो गौरव विल हेल्प यू. ये श्योर. तेरा यूट्यूब चैनल भी है ना? हाँ, मेंटल जिम चेस अकेडमी करके है. Yeah, mental- लॉकडाउन में मैंने वो खोला था हाँ. क्योंकि टूर्नामेंट्स नहीं थे. ओके. आई स्टार्टेड कोचिंग ऑल्सो, हाँ बट अभी आई एम प्रैक्टिसिंग, सो हाँ. इतना कोचिंग नहीं कर रहा हूँ, बट वीडियोस कभी कभी डालते रहता हूँ. Okay. बेसिक्स के लिए वीडियोस अवेलेबल है हाँ. मेरे चैनल. तो वही, इफ एनीबडी वांट्स टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, तुम गौरव को फॉलो कर सकते हो. मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में. एंड आई रिमेम्बर तूने 5 AM क्लब चालू किया था मोटिवेशन हाँ, के लिए. yes. सो ही इज अ वेरी गुड मोटिवेटर ऑल्सो. इसने एक व्हाट्सएप ग्रुप चालू किया था 5 AM क्लब नाम का. यू गेट अप एंड पुट अ मैसेज की यू आर अवेक एंड देन स्टार्ट योर डे. और ये चीज अगर तुम 3 दिन से If you miss 3 days, If you miss 3 days, then you will be removed from the group. Correct. And that was really motivating. मैंने देखा था ना, मैं तभी चेस में नहीं था इतना, बट मैंने ज्वाइन किया था Correct. ग्रुप बाकी एक्टिविटीज Yes, के लिए. हाँ. एंड बहुत हेल्पफुल है. एक्चुअली वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. लाइक वो बुक भी है, हाँ. तो उसी से इंस्पायर्ड होकर Correct, चालू the किया 5 था. AM ऐसा कुछ था Correct, ना. हाँ. वो बुक भी बहुत अच्छी है. स्टार्टिंग में रिस्पॉन्स भी अच्छा आया, हाँ. बट अगेन कंसिस्टेंसी इज द की. थोड़ा डिफिकल्ट है. हाँ, फिर वो रोज ग्रुप में से रिमूव करने पड़े मुझे, हाँ. तो नहीं फॉलो कर रहे. हाँ. और फिर बाद में जब बहुत कम जन रह जाते हैं तब ओवरऑल मोटिवेशन भी ड्रॉप हो जाता है कि धीरे धीरे. हाँ, तो 2 महीने के बाद बंद हुआ वो ग्रुप. आई मीन, हाँ. बट एटलीस्ट 2 महीने तो चला. इनिशिएट करना भी बहुत बड़ी बात है. हाँ, मैं लोगों को मोटिवेशनल स्टोरीज डाल के कर देता हूँ. Correct. थोड़ा करो ना, प्रॉब्लम क्या है. Yeah. हाँ. और बहुत कम लोग करते थे, इतना नहीं करते. क्यों कोई किसी के लाइफ में इतना ये करेगा. Correct. हाँ, लेकिन अभी कोई कर रहा है तो फिर अच्छा है. Correct. एंड एक्सपर्ट, अभी जैसे तूने इतना खेला है 2200 कॉमनवेल्थ, एक अभी कोई भी तेरे पास आएगा तो इट इज कि यू आर दैट Yes. लेवल, तूने किया है वो, तो फर्क पड़ता है. सो बहुत अच्छा था, बहुत मजा अरे आया. थैंक यू. नहीं, तेरे को भी मेरे को थैंक्स बोलना है क्योंकि ये पॉडकास्ट वगैरह है मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था. ओके. इट वाज लाइक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. मुझे नहीं लगा मैं इतने देर बोल सकता था ऑन कैमरा. ऑन कैमरा. हाँ. Okay. और तेरा भी जो स्टार्टअप है वो लाइक बहुत अच्छा है. यू आर डूइंग ग्रेट. थैंक यू ऑल द बेस्ट टू यू. थैंक यू सो मच. I नहीं, hope ये this grows to a next level. एग्जैक्टली नहीं, दिस मोटिव फॉर दिस इज कि आई वांट, अभी यू आर एन एक्सपर्ट इन चेस, सो यू कैन गाइड. ऐसे ही जो भी एक्सपर्ट्स आते हैं वो आके गाइड कर सकते हैं. या फिर समझो कोई ऐसे ही कैजुअल फ्रेंड आ रहा है, वो अपनी स्टोरी बोल सकता है. बराबर. और बहुत लोग रहते हैं कि जिनको बोलना है बट दे डोंट हैव अ प्लेटफॉर्म. True. राइट. Yes. तो अभी तेरे पास इतना नॉलेज है. करेक्ट. एंड तुझे मिल जाएगा प्लेटफॉर्म, ऐसी बात नहीं है. बट इफ यू आर माई फ्रेंड और मैं नहीं, तुझे बुलाऊं बराबर. तो फर्क पड़ता है ना. इवन लाइक मैं किसके लिए तो हेल्प कर सका. हाँ, दैट इज correct. ग्रेट फॉर मी. एंड यहाँ से आज बहुत लोग इंसाइट्स लेके जाएंगे Correct. कि चेस में ओके ऐसा कुछ रहता है. हम्म. चेस को जो लोग सीरियसली मतलब नहीं ले पाते, उनको आइडिया आएगा कि ओ ऐसा भी होता है. इट इज अ वेरी डेंजरस स्पोर्ट. डेंजरस मतलब ब्रूटल स्पोर्ट. ब्रूटल है. हाँ, तो वो एक आइडिया आएगा. एंड इट इज अ वेरी हेल्पफुल सेशन. इसमें किसी का Correct. नुकसान नहीं है, ये नहीं है. एंड इवन यू आर मोटिवेटिंग, इवन आई आर मोटिवेट, साथ में कुछ करते हैं बराबर है. डेफिनेटली. पर बहुत अच्छा लगा. एंड मुझे भी, yeah. होपफुली वापस हम मिलेंगे आफ्टर योर जरूर, FM. एक और इंटरव्यू करेंगे. चलेगा. यस. ओके, चलो, ओके, बाय. बाय बाय.